السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد سلیم عرف تاج السریہ بریلی سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دین حنفیت کے مسئلے آپ کے سامنے لاتا رہتا ہوں، دین حنفیت کی کتابوں سے اور دین حنفیت کے عالموں سے۔ آج ایک مسئلہ اور لے کر آیا ہوں، اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں تھوڑی سی آڈیو بنا دیتا ہوں کہ تاکہ آڈیو کو لوگ آسانی سے سمجھ جائیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے ایک حنفی عالم سے پوچھا، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کا ایک گروہ یعنی ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ تو میں نے اس عالم کو فون کر کے پوچھا، بھئی آج کے زمانے میں وہ کون سی جماعت ہے، کیونکہ وہ جماعت تو ہمیشہ رہے گی اور اس کی پہچان کیسے ہوگی، ہم آج کے زمانے میں کیسے پہچان کریں؟ تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، جس کو آپ کہو گے وہ یہی کہے گا کہ ہم ہی ہیں تو، لیکن وہ ثابت کرنی پڑتی ہے۔ اب ثابت کرنے میں یہ دین حنفیت جو ہے یہ فیل ہو جاتی ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور پھر اس کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، دین حنفیت کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، جب میں نے اس سے پوچھا تو میں نے کہا وہ کون سی جماعت ہے، تو اس نے کہا کہ حنفی بریلوی ہیں۔ میں نے کہا ثابت کرو کیسے ہیں؟ تو بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک جماعت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ میں نے کہا یہ تو بات صحیح ہے، پھر اب وہ کون ہے ایسی جماعت؟ تو بولتا ہے وہ ہم ہے۔ میں نے کہا بھائی تم ہو تو کیا صحابہ جو تھے وہ حنفی تھے؟ بولا نہیں۔ مقلد تھے؟ بولا ہاں مقلد تھے۔ اب آپ سوچئے، وہ صحابہ کو مقلد بتا رہا تھا، اچھا مقلد تو بتا رہا تھا، اب آپ غور کریں اس کی بات پر، اس نے دو صحابہ کی دو کیٹیگری بتائیں، ایک بتائی مقلد اور ایک بتائی مجتہد۔ اس نے کہا جو مجتہد ہوتے تھے، جو غیر مجتہد تھے، جو مجتہد نہیں تھے، جو مجتہد نہیں ہوتے تھے وہ مجتہد صحابیوں کی تقلید کیا کرتے تھے، یعنی صحابی جو یا تو مقلد ہوتے تھے یا مجتہد ہوتے تھے، جو صحابی مقلد نہیں ہوتے تھے وہ مجتہد ہوتے تھے، اور جو مجتہد ہوتے تھے وہ مقلد نہیں ہوتے تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ بتایا کہ صحابیوں کی دو کیٹیگری ہیں، ایک تو مقلد ایک مجتہد، جو مقلد ہوتے تھے وہ ان صحابیوں کے مقلد ہوتے تھے جو ان صحابیوں کو مقلد جو مجتہد ہوا کرتے تھے۔ میں نے چلو بھائی ٹھیک ہے، جو میں نے یہ بتاؤ جو صحابی جو نبی کی اطاعت کیا کرتے تھے ان کو کیا بولتے ہیں؟ بھائی صحابی تو نبی کی بات مانا کرتے تھے نا، لیکن وہ جھوٹا آدمی، کیونکہ دین حنفیت جھوٹ پر ہی بنی ہے نا، وہ یہ نہیں بتا رہا کہ نبی کی اطاعت کرنے والے صحابی جو تھے وہ کون تھے، وہ نہیں بتا رہا، وہ کہہ رہا کہ ایک صحابی ہوتے تھے جو مجتہد ہوتے تھے، دوسرے صحابی جو ہوتے تھے وہ مقلد ہوتے تھے۔ ارے تو میں نے کہا بھائی چلو یہ ہوتے تھے تو نبی کی بات ماننے والے جو نبی کی اطاعت کرتے تھے ان کو کیا بولتے تھے؟ اب وہ پھنس گیا اور وہ فون کٹ کر کے بھاگ گیا۔ بس میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باقی بات تو سب آپ آڈیو میں سن لیں گے، میں آڈیو لگا دیتا ہوں آپ کو، لیکن میں سامعین اکرام آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ دین حنفیت اللہ کی قسم یہ قرآن حدیث سے بہت دور ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کی کوئی دو چار باتیں آپ کو صحیح ملیں گی تو وہ اس لیے ملتی ہیں کیونکہ کنکر بیچنے کے لیے تھوڑے سے چاول ڈالنے پڑتے ہیں، ڈائریکٹ کنکر نہیں بکتے ہیں۔ ہاں کبھی سامعین اکرام آپ کو بتا دوں کہ ڈائریکٹ کنکر کوئی نہیں بیچ سکتا، اس کے لیے یہ دین حنفیت اگر کوئی بات آپ کو لگتی ہے ان کی صحیح ہے تو وہ تھوڑے سے چاول تھوڑی سی قرآن کی بات لے کر، باقی پورا دھرم ان کا جو ہے وہ حنفی دھرم ہے، اسلام نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ آڈیو سنیں، جزاک اللہ خیر۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام وعلیکم علیکم۔ السلام، کون؟ خیریت سے حضرت؟ میں سلیم بات کر رہا ہوں بریلی، وعلیکم السلام، کون؟ بریلی سے سلیم بات کر رہا ہوں میں، کون؟ سلیم بات کر رہا ہوں، سلیم ہاں بریلی سے۔ سلیم، جی ہاں جی بولیے۔ میں نے کچھ آپ کی آڈیو وغیرہ سنی تھی، مطلب بات چیت سنی تھی واٹس ایپ کے اندر، تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج اس زمانے میں وہ کون سا گروہ ہے؟ آج کے زمانے میں کون سا گروہ ہے جس کی ہم پہچان کر سکیں کہ وہی گروہ ہے یہ؟ جی اہل سنت و جماعت۔ جی تو وہ اہل سنت جماعت سبھی اپنا وہ کہتے ہیں نا، اس میں یہ وہ کرتے ہیں کہ کون سی والی؟
नहीं नहीं, तो सुनिए शेख, आप कौन से मसलक के हैं? मैं अहले सुन्नत ही हूँ। मैं अहले सुन्नत, आज के वक्त में उसकी पहचान? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी जमात की जो पहचान करी जाएगी? जैसे आपने मुझे सवाल किया, मैं भी आपसे वही सवाल कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो असली अहले सुन्नत कौन है उसका हमसे मत पूछिए, हम कुरान से बता दे रहे हैं, ठीक है? नहीं, आज के जमाने में मैं हजरत पूछ रहा था, आज के जमाने में सुनिए, अगर हम जैसे मिसाल के तौर पर हम आज किसी के को, जमाने में असली अहले सुन्नत कौन है, यही पूछना चाहते हैं ना? जी 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 जी, वही। हाँ, तो कुरान फरमाता है, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कि ऐसा ईमान लाओ जैसा सहाबा लेकर आए। तो आज के वक्त में जिसका ईमान और अकीदा सहाबा की तरह होगा वही असली अहले सुन्नत है। बिल्कुल 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 सही बात। लेकिन कौन है वो पहचान तो बताइए ना आप मुझे, वो कौन है वो? हाँ, तो अब मैंने, हाँ, वो है अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी आज के वक्त में। कैसे मतलब वो सहाबा के जैसे मान लेकर आए हैं? अब पहले थोड़ा आप ये बता दीजिए कि आप कौन से मसलक के हैं आज के वक्त में, उसकी पहचान क्या है? मैं अहले हदीस हूँ। अच्छा, अहले हदीस आप हैं? जी जी जी। तो शेख ये अहले हदीस आप क्यों बने? नहीं, वो मुझे इतना नहीं पता मैं क्यों बना। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज के जमाने में जैसे आपने कहा है कि आप अहले हदीस क्यों बने। हाँ, तो मैं पता करना चाह रहा हूँ। मैं बरेलवी इसलिए बना क्योंकि, सुनिए यार, मैं बरेलवी इसलिए बना क्योंकि जो सहाबे किराम का अकीदा है वही अकीदा बरेलवियों का है। आप अहले हदीस क्यों बने ये आपको पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता है? तो आपको पता है, मैं ऐसा है ना, देखो आप थोड़ा सा मेरी बात को सुन लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। जल्दबाजी करने से तो कोई फायदा नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि आज के जमाने में अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी हैं, आपने ये कहा कि हनफी भी हैं और बरेलवी भी हैं, यानी बरेलवी जो है वो हनफी है। तो क्या सहाबा इकराम भी हनफी थे? जी, सहाबा इकराम हनफी थे क्या? बिल्कुल नहीं। मुकल्लिद थे सहाबा इकराम? जी, मुकल्लिद थे। सहाबा इकराम मुकल्लिद थे, तकलीद किया करते थे? बेशक। किसकी? हाँ, तकलीद की तारीफ बताइए क्या है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ ना। हेलो, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, जो सहाबा के, हाँ सुनिए, जो गैर मुजतहिद सहाबा थे वो अपने वक्त के मुजतहिद सहाबा की तकलीद करते थे। अच्छा, अब थोड़ा आप तकलीद के माने क्या है उसको बता दीजिए शायद। आप बताइए। तकलीद के माने हैं, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मुस्तफ़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 378 पे फरमाते हैं, अत तकलीद हुआ कबूलो कौलुन बिला हुज्जा, यानी हुज्जत और दलील के बगैर किसी की बात मान लेना, इसको तकलीद कहते हैं। और तकलीद के दूसरे माने हैं अत तकलीद व इत्तिबाउर रजुल गैरहु फीमा समिअहु यक़ूलु औ फी फ़िअलिही अला ज़ाम इन्नहु मुहिक्कुन बिला नज़र फ़ी दलील। ये तकलीद के दूसरे माने हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो अगर हम तकलीद किसी की करते हैं ना तो हम उससे दलील मांगेंगे ना वो हमारे लिए हुज्जत है, क्या मतलब है इस बात का? क्या हुआ? आपने कहा ना कि तकलीद जो जिसी की जाएगी उससे दलील नहीं मांगी जाएगी। जैसे आप पहले हदीस है ना शेख? हाँ, हेलो, हाँ, पहले हदीस है ना? जी। हाँ, तो जैसे आप कहते हैं बुखारी की ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ है, तो इसको आप कहाँ से लेते हैं? मुहद्दिसीन से लेते हैं ना? नहीं, मैं इस पर नहीं जा रहा अभी, कहाँ से लेते हैं कहाँ। मैं वो मेरा जो मौजू है ना तो आप टॉपिक बताइए, नहीं तो बगैर टॉपिक पे बात होगी तो 10 तरफ चली जाएगी। टॉपिक बताइए, कौन सा टॉपिक ये है कि आज पे बिदात पे? नहीं, आप आज के जमाने में जैसे आपने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात जो है हनफी बरेलवी, वो वही जमात है जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा था, और आपने दलील दी कि कुरान कहता है ऐसे ही मान लो जैसे नबी के सहाबा मान लेकर आए। तो आपने कहा कि ये जो मतलब जो आज नबी के सहाबा मुकल्लिद नहीं थे, ये मुकल्लिद थे आपके बकौल है, और वो लोग तकलीद किया करते थे। ये मैंने कहा यार, और ये मैंने कहा मैंने वो कहा ही नहीं, आप गलत सुन लिए। आपने कहा सहाबा मुकल्लिद थे। अरे तो मैंने क्या कहा कि सहाबा मुकल्लिद थे, लेकिन किसके? जो गैर मुज्तहिद सहाबा थे वो अपने मुज्तहिद सहाबा के मुकल्लिद थे, मैंने ये कहा। मुकल्लिद थे ना, मतलब कहने का कुल मिला के मुकल्लिद थे ना। अरे आप बताइए, अभी आप बताइए। नहीं आलिम नहीं, मैं जरा आप मुझसे आप ही सोच रहा है कि आप जैसे मुझसे बहस कर रहा है या मैं आपसे बहस कर रहा हूँ। आपने कहा वो मुकल्लिद थे, तो आप बात को गोल बोल क्यों कर रहा है? मुकल्लिद थे तो मुकल्लिद थे, बात खत्म हो गई।
अच्छा ठीक है। तो मुकल्लिद थे तो अपने मुकल्लिद थे वो, अपने मुस्तहिद साहब जैसे सुनिए यार, जैसे सुनो, जैसे 1,24,000 कमोबेश सहाबा किराम थे। इतनी वजाहत क्यों कर रहे हैं आप इतनी वजाहत क्यों कर रहे हैं? इतनी वजाहत आप बोले मुकल्लिद से बात खत्म हो जाती है। अरे तो सारे साहबा मुकल्लिद थे जो गैर, मुझे क्या पता कौन आप बता रहे हैं। नहीं अच्छा तो मुकल्लिद जो साहबा मुकल्लिद सारे नहीं थे, और जो मुज्तहिद थे वो मुकल्लिद नहीं थे, जो गैर मुज्तहिद थे वो मुकल्लिद थे, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या? जो मुज्तहिद थे वो मुकल्लिद नहीं थे, मुज्तहिद थे वो मुकल्लिद नहीं थे। हाँ। और जो गैर मुज्तहिद थे वो मुकल्लिद थे मुज्तहिदों के। जो मतलब मुज्तहिद थे वो क्या थे? आपने कहा ना कि जो गैर मुज्तहिद थे, जो मुज्तहिद नहीं थे वो मुकल्लिद हुआ करते थे, और जो मुज्तहिद हुआ करते थे वो मुकल्लिद नहीं होते थे। हाँ भाई, क्यों वो मुकल्लिद क्यों हो गए? क्योंकि उनके अंदर खुद अल्लाह ने इतना इल्म रखा है कि वो कुरान और हदीस से खुद मसला निकाल ले सकते हैं, तो वो तकलीफ क्या करें? हजरत मेरी बात पहले सुने आप। जो आपने जो बात कही है कि जो मुज्तहिद साहबा हुआ करते थे वो तकलीद नहीं किया करते थे जी, वो फिर क्या किया करते थे? हाँ, क्या किया करते थे? वो कुरान और हदीस से इस्तिंबात किया करते थे। तो अल्लाह के रसूल की बात कौन मानता था? कोई नहीं मानता था। फिर इसका मतलब कुछ इज्तिहाद किया करते थे, कुछ साहबों की तकलीद किया करते थे। रसूल की बात की सुनिए शेख, अल्लाह की रसूल की बात मानना जो है ये तकलीफ नहीं है। आप रसूल के उम्मती हैं, मुकल्लिद थोड़ी हैं। अरे तकलीद में होता है दलील शरई को ना देखना। नबी का हर फेल दलील शरई है। तो फिर साहबा को वो साहबा कहाँ है जो नबी पर अमल करते, नबी की बात पर अमल करते, उनको क्या बोला जाता था? उसको मुकल्लिद नहीं बोलेंगे शायद। क्या बोलेंगे बताइए आप? ठीक है, देखिए तकलीद में जो होता है वो होता है बिला नजर की दलील। ठीक है, यानी दलील में नजर न देखना। तो रसूल का हर कौल और फेल ये दलील शरई है। जो किताब है अहमद यार नईमी साहब की जाल हक, उसमें लिखा है कि 4 इमामों के सिवा किसी और की तकलीद जायज ही नहीं है, और अगर कोई 5वां है तो मानते हैं। एक मिनट हजरत, एक मिनट पहले बात सुन लें आप एकदम शॉर्ट, मतलब बात काट रहे हैं मेरी। उसमें लिखा है कि 4 इमामों के सिवा किसी और की तकलीद जायज ही नहीं है, अगर कोई 5वां है वो गुमराह है और गुमराह करने वाला है। ठीक है? हाँ, तो अब आप मुझे बताइए, एक मिनट अब आपने ये कहा कि वो जमात जो है जो सहाबा हुआ करते थे, या तो वो मुकल्लिद हुआ करते थे या मुज्तहिद हुआ करते थे, हैं? तो और वो कौन सहाबा थे जो नबी की इताअत किया करते थे, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको जाहिर है क्या नबी की इताअत को तकलीद नहीं बोलेंगे शेख। अब इसीलिए कहता हूँ सुनिए यार, आपने सहाबा की 2 किस्में बताई ना हजरत, मेरी बात पहले समझ लिया, आप जल्दबाजी कर रहे हैं। आपने सहाबा की 2 किस्में बताई, एक ने बताया कि मुकल्लिद है और एक ने बताया मुज्तहिद है। आपने दो किस्में बताई ना। के माने हैं तकलीदो। अरे वो हो गई बात, मैं समझ गया। तकलीद के मायने में समझ गया कि शरई दलील उससे नहीं मांगी जाएगी, जो अगर किसी की तकलीद की जाएगी उससे दलील नहीं मांगी जाएगी, बिना दलील उसकी बात मानी जाएगी। तकलीद के मायने है मेरे नबी की बात को बिना दलील मानना, इसको तकलीद कहते हैं, है नहीं? कहाँ लिखा है? ये आप ही किताब में लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा है? ये हमारी किताब में लिखा हुआ है कि तकलीद के जो मायने हैं वो गैर नबी की बात को। कहाँ लिखा है? आप ही की किताबों में लिखा हुआ है। कुरान हदीस में कहाँ लिखा है? कुरान हदीस में नहीं है, कुरान हदीस में तो तकलीद भी नहीं लिखा हुआ। कुरान हदीस में नहीं है तो आप अहले हदीस हैं, आप तकलीद तो मेरे भाई गीता महाभारत से बताएंगे। ठीक है, कुरान हदीस में तकलीद है ही नहीं ना, वो तो आप बता रहे हो ना मुझे। कुरान में तकलीद है? कुरान हदीस में तकलीद नहीं है, बताओ। अच्छा तो सूरह तौबा आयत नंबर 100 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? वसाबिकूना अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हाँ, तो वो क्या करते थे? वो तकलीफ क्या करते थे? इसीलिए कहता हूँ कि अपने आलिम को लेकर आइए। तकलीफ क्या करते थे? एक मिनट भाई, तो आपसे मैंने क्या बात बोली कि आपने सहाबा की 2 किस्में बताई, एक मुकल्लिद बताई और एक गैर मुकल्लिद बताई, यानी वो मुज्तहिद बताया। एक मुज्तहिद बताया आपने, जो मुज्तहिद। एक मिनट भाई, एक मिनट दीजिए।
ارے جا کہاں رہے ہو آپ بات ادھوری کیسے جا رہے ہو تم بات مطلب اب آپ نے صحابہ پر جھوٹ بولا معاذ اللہ صحابہ پر جھوٹ بولا نہیں ہے اچھا بتائیے صحابہ ایک منٹ بھائی صاحب ارے سنو ٹھیک ہے ارے بھاگ کیوں رہے ہو ارے ہلو بھاگ گئے ہلو